Okay, so a very welcome to all of you students. Now, last time we have started off with Rolle's theorem. So today also we'll continue with the same. But last time हमने Rolle's theorem का validity check किया था, whether it was valid or not on the given functions. So today we are going to verify the Rolle's theorem. So please write down type 5 का continuation Rolle's theorem. Question number 2. लिख लीजिए क्या दिया है? Second question है ये, but today's it is first question. So verify Rolle's theorem for the following functions, and there are two functions available. So let us begin with the solution second का first example. So write down solution for question 2 का first example. Let's begin. Now these kind of questions generally asked for 2 to 3 marks. 2 or maybe 3 depending on the question. Okay. So first of all, students, function is already given to us. So let's write down the given function. So write down given. The function is, or you can write down consider the given function. So the given function is x square minus 5x plus 9. Number this as equation 1. Okay, your first time. Now recollect what does the statement say, students. See, the given function, one by one conditions, a given function should be continuous on the closed interval a comma b. The function should be differentiable on the open interval a comma b. ये दो पहले दो conditions है. Now you observe this is a polynomial function, and we know that polynomial function is always a continuous function. So I hope everyone must have written this step. So write down next step. Write down since the given function, ऐसा लिखो. Since the given function is polynomial, hence it is continuous, hence it is continuous on closed interval 1,4 and differentiable on open interval 1,4. दोनों को एक साथ लिख सकते हैं. अभी लास्ट टाइम देखो हमने पॉइंट वाइज लिखा था. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. आप दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन योर स्टेटमेंट. So please write down this. ठीक है. अब देखिए क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,4. तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बाद f of a इज इक्वल टू f of b, ये थर्ड वाला कंडीशन था हमारा. तो उसको भी हमें चेक करना है. तो राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस हियर a is equal to 1 and b is equal to 4. So we want to find out the value of f of a, that is nothing but f of 1. Chalo, find out this value of f of 1. And also we want to find out the value of f of b, which is nothing but equal to f of 4. हम क्या कर रहे हैं? We are verifying the Rolle's theorem. So quickly tell me what is value of f of a. So f of a का value is 5. Yes, absolutely. f of b का value 5. Yes, this is also 5. So f of a और b दोनों के values equal है. They are equal. ठीक है ना? So write down what do we get. So here therefore ऐसा लिख सकते हो, therefore f of a is equal to f of b. तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया रोल्स थ्योरम का. एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी आया, और f of a इक्वल टू f of b भी आया. ठीक है. So write down till here.
तो अभी आप लिखिए नेक्स्ट लाइन पे, हेंस ऑल द कंडीशन डाउन, हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied. तो रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. नाउ वी हैव डन इट लास्ट टाइम. सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. मतलब रोल्स थ्योरम वैलिड है. बट इसके बाद कंडीशन, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि आफ्टर ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी. ऐसा एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा विद इन द इंटरवल such that f dash of c will become 0. So tangent I have explained कि tangent at that point will be parallel to x axis, तो f dash of c equal to 0 हो जाएगा. तो ऐसा एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू ऐसा c का हमें मिलना चाहिए जो इंटरवल में लाई करता है. दैट इज व्हाट इट सेज. ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दिस. ये सेटिस्फाइड का होने के बाद लिखिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ c, ऐसा लिखो आप ऑन द नेक्स्ट लाइन. To get the value of c, we use the condition f dash of c is equal to 0. Obviously वो c का वैल्यू मिलेगा कैसे, जब हम f dash of c को 0 के साथ इक्वेट करेंगे. रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c which lies within the interval a comma b, but for that f dash of c should become 0. तो obviously c का वैल्यू तो तब मिलेगा जब f dash of c 0 होगा. उसको 0 के साथ हमें इक्वेट करना पड़ेगा. So what we'll have to do, students, we will have to differentiate the function with respect to x first. So write down on the next line. Write down. अच्छा, यहाँ पे ये भी कंडीशन लिख लो आपके रेफरेंस के लिए. We get the value of c, we use f dash of c equal to 0. ऐसा लिख लो, where c belongs to open interval 1,4. वो जो c का वैल्यू है वो 1,4 इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए. So now what we'll do, we'll differentiate equation 1. Write down, differentiating one, that is equation 1 with respect to x. So therefore what will happen, f dash of x will be equal to derivative of this, so that will be 2x minus 5. But what do we want, f dash of c चाहिए, तो x के जगह पे c डाल दो, f dash of c चाहिए. So therefore f dash of c is equal to 2c minus 5. But we all know that f dash of c is 0. c का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब हम f dash of c को 0 के साथ इक्वेट करेंगे. तो f dash of c is 0. So therefore how much is value of c, students? So therefore c का वैल्यू is 5/2, या लिखना है तो 2.5 लिखो. Now is this value lying in this interval? Yes, it is within the interval. ठीक है ना. तो चलो पहले आप c तक लिख लो. c का वैल्यू 2/5 आ गया हमें. तो c का वैल्यू 2/5 which is, sorry, 5/2, not 2/5, 5/2 which is 2.5. ऐसा आप लिख लो, which belongs to the interval 1,4. Hence Rolle's theorem is verified. ऐसा लिखो, hence Rolle's theorem is verified, and that is the end of the problem. ठीक है, तो मैं प्रोसीजर को रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स. यू राइट डाउन द गिवन फंक्शन. Since the function is polynomial, it is continuous and differentiable.
ठीक है, देन वी राइट डाउन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी फाइंड आउट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू. सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, और फिर वेरीफाई होता है. अब ऑब्वियसली अगर वेरीफाई करना है, अगर कंडीशंस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होता है, वेरीफाई करने का सवाल ही नहीं उठता है. वेरीफाई कब होगा? व्हेन इट इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो जो वेरीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल आते हैं, तभी तो सी का वैल्यू मिलेगा. वेरीफाई होगा कैसे? जब सी का वैल्यू मिलेगा. तो अगर वो वेरीफाई करने को बोल रहा है तो फंक्शन प्रॉब्लम ऐसे आएंगे कि जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके सी का वैल्यू मिलेगा. Am I clear about this procedure, everyone? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So please make a note of this, then we'll move on to the next example. Now let's move on to question 2 का second example, students. देखो फॉर्मेट हर एक प्रॉब्लम के लिए वही है, खाली फंक्शन और इंटरवल चेंज होते रहेगा. So the given function is sin x plus cos x plus 7 and x belongs to the closed interval 0, 2 pi. तो चलिए लिखे सॉल्यूशन पर सेकंड. So the given function is nothing but sin x plus cos x plus 7 and number this as equation 1 as we have done previously. Now we know by algebra of continuous function, continuity में हमने किया, देखो sin x function continuous है, cos x function is always continuous, and 7 which is a constant function, it is also a continuous function. functions है तो कंबाइन करके जो फंक्शन मिलेगा, हेलो, हाँ प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सारे हाँ इट्स ओके, सारे फंक्शन को जो कंबाइन करके फंक्शन मिलेगा दैट विल बी ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है ना? तो लिख लो बाय एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, राइट डाउन द स्टेटमेंट बाय एल्जेब्रा ऑफ continuous functions, the given function is continuous on, ऐसा लिख लो, by algebra of continuous function, the given function, या it is continuous on, ऐसा भी लिख सकते हो. it मतलब function, या ऐसा लिख लो fx is continuous on, it के जगह पे fx कर दो. continuous on closed interval 0, 2 pi and it is differentiable on the open interval 0, 2 pi. इसलिए मैंने वो इट्स लाइक यू नो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली वो स्टेटमेंट हमें याद रखना है बस. तो हाउ मच इज ए स्टूडेंट्स? ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 2 पाई है, तो वी नीड एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू और एफ ऑफ 2 पाई का वैल्यू. तो चलो हाउ मच इज एफ ऑफ 0 का वैल्यू? तो इट इज 8. ठीक है, एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू इज ऑल्सो 8. दोनों वैल्यूज 8 आ गए. साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 + 7 8. 2 पाई साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, 1 + 7 इज अगेन 8. So therefore what we have got, students? So therefore f of a का वैल्यू is equal to f of b का वैल्यू. तो स्टेटमेंट तो वही है. Hence all the condition of Rolle's theorems are satisfied. To get the value of c, we use f dash of c is equal to 0 where c belongs to open interval 0, 2 pi. मतलब जो c के वैल्यूज है वो 0, 2 pi इंटरवल में लाई करने चाहिए. Okay, please note down till here. So now students, let us differentiate equation 1 with respect to x. So I'll just write down over here. तो देखिए क्या मिलेगा, f dash of x. So f dash of x will be cos x minus sin x
बट हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एफ डैश ऑफ सी चाहिए ना, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी, बट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू कॉस सी minus sin c, so therefore cos c is equal to sin c. This is what we get, cos c is equal to sin c. अभी c के कौन से वैल्यूज है, for what values of c they both are equal, तो one of the value तो 100% आपको मालूम होना चाहिए, cos c equal to sin c, तो can anyone tell me one value of c? pi/4 एब्सोल्युटली, वेरी गुड। तो देखो एक वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, तो देयरफॉर एक तो c का वैल्यू है pi/4, लिख लो आप, देयरफॉर c इक्वल टू pi/4 इज वन ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना। बट जो इंटरवल है वो 0 to 2 है। नाउ पे अटेंशन, नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे pi/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इज 45 डिग्री एंगल। अब वो रिपीट होके ऑब्वियसली इट विल वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन, जब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा वो एंगल तो 0 to 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक मल्टीपल्स ऑफ pi/4, राइट। जो इस इंटरवल में pi/4 के मल्टीपल्स है उसके ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल कब आते हैं। तो एक वैल्यू तो ऑलरेडी है, अब pi/4 के मल्टीपल्स कौन से है, pi/4 के मल्टीपल्स है 3 pi/4, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड मल्टीपल, pi/4, 1 pi/4, 3 pi/4, 5 pi/4, 7 pi/4, ये इस इंटरवल के अंदर आते हैं। 9 pi/4 वोंट कम इन दिस इंटरवल, ठीक है, 9 pi/4 उस इंटरवल के बाहर निकल जाएगा। नाउ वी हैव टू चेक आउट ऑफ दीज ये दोनों वैल्यूज इक्वल किस एंगल पे आने वाले हैं। तो यू नो वर्किंग ऑफ 3 pi/4 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ, pi/4 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज अनदर वैल्यू आल्सो वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है ना, चेक कर रहे हैं हम। नाउ हाउ डू वी राइट डाउन 3 pi/4 एज, तो 3 pi/4 विल बी रिटर्न एज pi minus pi/4। 3 pi/4 को कैसे लिखेंगे, pi minus pi/4। अब ये आप यहाँ पे डालो, cos of pi minus theta is minus cos theta and sin of pi minus theta is sin theta। तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल नहीं है। रिकलेक्ट अलाइड एंगल फॉर्मूलेज, ये एंगल आप यहाँ पे डालोगे तो cos of pi minus theta माइनस cos theta होता है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो -1/√2 आएगा और राइट हैंड साइड का वैल्यू +1/√2 आएगा, तो डज नॉट सेटिस्फाई। अभी 5 pi/4 पे चेक करते हैं, तो हाउ डू वी राइट ऑन 5 pi/4 एज, so it is pi plus pi/4, this is how we write down 5 pi/4 as, so cos of pi plus theta minus cos theta, sin of pi plus theta minus sin theta, तो दोनों वैल्यूज -1/√2 आएंगे। तो यस ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 7 pi/4, 7 pi/4 को हम कैसे लिखेंगे, तो 7 pi/4 विल बी रिटर्न एज 2 pi minus pi/4, ठीक है। तो 2 pi minus pi/4, तो cos of 2 pi minus theta, cos of 2 pi minus theta cos theta होता है, एंड sin of 2 pi minus theta minus sin theta होता है। तो दोनों वैल्यूज इस पे भी इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो विच ऑफ द वैल्यू इज करेक्ट, विच ऑफ द वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, 3 pi/4, 5 pi/4 and 7 pi/4। तो 5 pi/4 also satisfies this condition, cos c equal to sin c, 5 pi/4 पे भी इक्वल आते हैं। तो another value of c is 5 pi/4 which lies in this given interval। हाँ, तो मैं belongs to बाद में लिखूंगा, आप ये लिख लो पहले। Okay, so I repeat what we have done students, we have found out f dash of x, f dash of c निकाल लिया यहाँ पे, f dash of c 0,
cos c इक्वल टू sin c। तो cos c इक्वल टू sin c कौन से एंगल्स पे होता है वो देखना है जो इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो वी हैव टेकन, एक तो π/4 हमें पता ही था पहले से, देन वी हैव टेकन मल्टीपल्स ऑफ π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। फिर हमने अलाइड एंगल फॉर्मूले से चेक किया ओरली, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू शो दिस वर्किंग, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है 5π/4 एंड π/4। वो कैसे आया, इट इज नॉट नेसेसरी, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, एंड देन वी हैव यूज्ड अलाइड एंगल फॉर्मूला एंड वी हैव चेक कि हाँ ये दोनों वैल्यू डालेंगे सी का तो ये दोनों इक्वल आएंगे। एम आई क्लियर विद दिस प्रोसीजर एवरीवन? ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, वी डोंट नीड दिस। So C, which is π/4, 5π/4, this belongs to the interval 0, 2π। ये जो दो C के वैल्यूज है ना, ये इस इंटरवल में लाई करते हैं और इसको सेटिस्फाई करते हैं, दे सेटिस्फाई दिस। तो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक तो x इज इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट ड्रॉ होगा जो x एक्सिस को पैरेलल होगा, और दूसरा टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वो 5π/4 पे होगा जिसपे, एंड दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। f' ऑफ c इज इक्वल टू 0 का मतलब ही वो है। ठीक है, तो हेंस अब फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अपने को c के वैल्यू मिले ना, स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, एक तो वैल्यू मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम। उसके बाद फाइनल आंसर लिखिए दस, और यू कैन राइट डाउन हेंस आल्सो, दस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाई कब होता है, जब सी के वैल्यूज मिलते हैं। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So students, let us move on to the next question, that is question number 3. Now let us see what it says. The function f of x is given as x into x plus 3 into e to the power minus x by 2. Function दिया है. The given function satisfies the condition, all the conditions of the Rolle's theorem on the closed interval minus 3, 0. Find the value of c such that f dash of c is equal to 0. अच्छा, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाइड एंड नाउ वी हैव वेरीफाइड, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। राइट डाउन, सिंस द गिवन फंक्शन, ऐसा आप लिखो, अच्छा पहले लिखो गिवन, राइट डाउन, गिवन f of x is, now let's multiply this x, तो ये क्या हो जाएगा, x square plus 3x into e to the power minus x by 2, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द गिवन फंक्शन। अभी आप लिखो, सिंस द गिवन फंक्शन, सिंस द गिवन फंक्शन satisfies all the condition of Rolle's theorem, मतलब we already know students कि function is continuous, it is it is continuous on the closed interval minus 3, 0, it is differentiable on the open interval minus 3, 0, and f of a और f of b का value equal है, that is already known to us. Find the value of c such that f dash of c is equal to 0. ये कंडीशन यूज करके हमें c का वैल्यू निकालना है। वेरीफाई तो होगा ही, इट इज वेरीफाइड ना, तो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग, ऐसा लिखो, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, so let us apply u into v rule. चलो स्टार्ट डूइंग, u into v rule अप्लाई करो आप डिफरेंशिएशन का, एंड प्लीज कंटिन्यू। c का एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसा मिलेगा ही जिसके लिए f dash of c 0 होगा,
तो ऐसा आप लिख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, चलो बाद में भी लिख सकते हैं हम, पहले डिफरेंशिएट कर लो आप। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x रिमेनिंग सेम इंटू e रेज टू माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस हाफ प्लस e रेज टू माइनस एक्स बाई टू रिमेनिंग सेम, इसका डेरिवेटिव is 2x plus 3. Now let us take e raised to minus x by 2 common. So therefore f dash of x equals e raised to minus x by 2 common निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, x square plus 3x अपॉन माइनस 2। ठीक है ना, या पहले माइनस साइन डाल देता हूँ फिर अपॉन 2 लिखते हैं। तो वी आर लेफ्ट आउट विथ माइनस टाइम्स ऑफ x square plus 3x by 2, and from here we are left out with 2x plus 3. अभी इसको LCM लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। This will be further equal to e raised to minus x by 2 remaining same, इसका LCM लेंगे। ठीक है, तो it will be minus x square minus 3x and plus 4x, तो minus 3x plus 4x तो positive x आएगा, and this will be positive 6. This is completely divided by 2. Check, this is what we'll be getting. ठीक है, अब क्या करेंगे, चाहिए तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो माइनस साइन टेकन कॉमन, e raised to minus x by 2, this is divided by 2. ठीक है, तो what will be left out inside the bracket students? So will be left out with x square minus x एंड माइनस 6 बचेगा। ये है हमारा f डैश ऑफ x, दिस इज अवर f डैश ऑफ x। So we have found out the derivative of the function. अभी क्या होगा, there exists, ऐसा लिखो, there exists at least one value of c such that f dash of c becomes 0. ऐसा कम से कम एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसके लिए f dash of c 0 हो जाए। तो f dash of c, तो f dash of c is equal to what students, minus e raised to minus c by 2 upon 2 into c square minus c minus 6 is f dash of c, and f dash of c becomes equal to 0. So it is minus times of e raised to minus c by 2 divided by 2 into c square minus c minus 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इज इक्वल टू, माइनस साइन भी एलिमिनेट हो जाएगा, e रेज टू माइनस c बाई 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस c माइनस 6, ऐसा मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। एक तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस साइन को वेव ऑफ कर दिया। नाउ वी नो दैट स्टूडेंट्स e रेज टू माइनस c बाई 2 विल नेवर बिकम 0, e का पावर है ना वो। तो यहाँ पे आप लिखो therefore what will happen, c square minus c minus 6 is equal to 0. Reason, since e raised to minus c by 2 is never equal to 0. हाँ, ये यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। e raised to minus c by 2, e का पावर है तो कभी भी वो 0 तो होगा नहीं, इट्स अ नॉन जीरो नंबर। what will become 0, c square minus c minus 6 is equal to 0. So how much is value of c, इस quadratic equation को factorize करो and tell me the values of c. दो values मिलेंगे आपको c के, tell me the minus value. 2 and plus 3. minus 2 and plus 3. Okay, very good. Everyone the same values, minus 2 and plus 3. ठीक है, has to be. अभी देखो हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, इट लाइज विद इन दिस इंटरवल -3, 0 में। तो विच इज द करेक्ट, विच इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू आउट ऑफ देम, टेल मी।
minus 2. -2. यस यस करेक्ट, -2 वैल्यू आएगा। हाँ, तो लिखो सिंस p equal to 3 does not belong to the interval -3, 0। 3 इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करता है, इसीलिए जो c का वैल्यू एक्सेप्टेबल है दैट इज -2। विद दिस प्रॉब्लम इज ओवर। उसने क्या बोला था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 ना, तो वही किया हमने। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। तो ये जो देयर एग्जिस्ट का कंडीशन है ना, ये आप पहले भी लिख सकते हो, हमने प्रीवियस एग्जांपल में पहले लिखा दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, या डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, नो इशू। आंसर में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। So this we have completed question number 2 as well as 3. Please go through it. आपको पता है यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, आप c का कोई भी रियल नंबर डाल दो, रियल वैल्यू डाल दो, e का पावर है, e रेज टू समथिंग इज नॉट गोइंग टू बिकम 0, इसीलिए वो ऑप्शन एलिमिनेट ही कर दिया हमने कि e रेज टू -c/2 विल नेवर बिकम 0। और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा, वहां से हमने फिर c के वैल्यूज उस इंटरवल में लाई करने वाले फाइंड कर ली। दैट इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन।